Students, very good morning. How are you all? All of you are very warmly welcome in this YouTube channel that all of you know is planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Students, nowadays in your class we are studying fourth chapter in Hornbill, that is Landscape of the Soul. We have done 3 videos in that chapter, in this chapter, and we have found out that the chapter deals with the comparison between the Chinese view of art with that of Europeans, and we have found out that both of these viewpoints are totally different. The Chinese give freedom to the viewer, while the European give him no such freedom and expect him to develop a particular viewpoint. The Chinese painter wants active involvement of the onlooker because his landscape is a spiritual one, while the Western or European painter wants the viewer to see his landscape as he sees. So, students, in this way we can say that creativity is a means of disciplining the limitless freedom of the human mind. With this exchange, we also reconcile our insignificance with omnipotence. Eventually, we fuse all this knowledge to moments within the present, traditions within the contemporary, change within permanence, the speculative within the reasoned, the mental within the material. Resolving these contradictions is an essential step towards a deeper self-awareness for an individual. The landscape or a creative work of art is thus the reflection of the inner awareness of the artist. And there is no confusion regarding this कि कोई भी लैंडस्केप होता है या कोई भी क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट होता है, वो किसी आर्टिस्ट के इनर अवेयरनेस का रिफ्लेक्शन होता है. However, if this awareness was confined only to the artist, the artwork should lose its impact. अगर जो अवेयरनेस है वो आर्टिस्ट तक कन्फाइंड रहता है तो जो आर्ट वर्क है वो अपना इम्पैक्ट खो देता है. The excellence of masterpiece lies in its exalted influence on the onlooker who partakes of their glory and is able to feel the marvels of the power of his thought. जो मास्टरपीस है उसका एक्सेलेंस इस बात में होता है कि वो ऑनलूकर पे कैसा या क्या इन्फ्लुएंस डालता है. दिस अंडरस्टैंडिंग एलिवेट्स हिम, इंस्पायर्स हिम and makes him a better human being. Every artist provides for some conceptual space so that the spectator can enter the landscape from wherever he likes and lets him enjoy the liberty of making his own interfaces without losing the inner and spiritual concept of the artist. This is the same spiritual concept about which we were talking in the last video. You know, both Chinese and Western art enjoy a place of repute and are treasured for the
traditions and values they passed on to the coming generations of artists. चाहे चाइनीज आर्ट हो या वेस्टर्न आर्ट हो, दोनों आर्ट अपने आप में रिप्यूटेड हैं। दोनों आर्ट में ट्रेडिशंस और वैल्यूज ट्रेजर्ड हैं, जो कि आने वाली जनरेशंस को पास की जाएंगी इन आर्टिस्ट के द्वारा। दो बोथ imitated a genre, they are both varied in their concept. यद्यपि दोनों इमिटेट करते हैं एक जेनर को, लेकिन फिर भी अपने कॉन्सेप्ट में दोनों अलग हैं। डिस्टिंक्शन क्या है? The distinction between the two art forms is beautifully illustrated by the ancient Chinese tale about the painter Wu Daoji, who was not satisfied with the emperor's appreciation of his landscape on its outer appearance. He insisted on showing him the way, because for him his landscape had much deeper connotations. His landscape was not a real one, so he did not want it to be viewed from a single viewpoint. He gave an inner conceptual space to his viewer, thus letting him enter from any point and also enjoy the liberty of traveling back and forth. The Western landscape, on the contrary, insists on delicate realism, a perfect illusionistic likeness where the artwork is reproduced in an actual way. The figurative painting of the Western painter, which stressed on the relationship between the object and its visual background, wanted the viewer to borrow his eyes and look at the landscape exactly as he saw it. The Western landscape thus gives little space to the viewer to go deep into the creative work and travel in it at his own pace to and from the landscape. Unlike the Chinese painting, it is not multidimensional, nor does it permit active participation of the spectator. In today's class, we are going to get some deeper information regarding this Chinese concept of conceptual painting or conceptual space. We are going to get information regarding the art breadth or the outsider art, the concept that was mooted by the French painter Jean Dubuffet in the 1940s. So all of you are supposed to show your full patience and whole concentration in the class. Open your book on page number 36. This concept is expressed as Sansui, literally mountain water, which used together represent the world landscape. Here, the author refers to the Chinese concept of Shansui. Shansui, which literally means mountain water. यहाँ पे जो author है वो Chinese जो Shansui का Chinese concept है उसको refer करता है। वो कहता है कि ये जो concept है वो Shansui के रूप में express किया जाता है। सेंसुई का लिटरल मीनिंग होता है माउंटेन वाटर, और जब माउंटेन वाटर को विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, माउंटेन वाटर जो होता है वो लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, किसी भी इमेज के 2 एलिमेंट से ज्यादा
या दो से ज्यादा एलिमेंट्स। These represent two complementary poles। ये जो सेंसुई है, ये जो माउंटेन वाटर का कॉन्सेप्ट है, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स के का जो दाओइस्ट व्यू है उसको रिफ्लेक्ट करता है। द माउंटेन इज यांग। माउंटेन क्या है? माउंटेन मतलब यांग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि वर्टिकली हेवन तक पहुंच रहा है। वो क्या शो करता है? माउंटेन शोज स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, जो कि स्टेबल रहता है, वार्म रहता है, सन में एकदम धूप में सूखा रहता है, ड्राई इन द सन। वहीं पे यिन क्या है? While the water is yin, water क्या है? Water yin है, horizontal है, and resting on the earth, जो कि horizontal रूप में earth पे रेस्ट करता है या करती है। Water fluid है, moist है, cool है। I mean yang से एकदम डिफरेंट है, लेकिन है कॉम्प्लीमेंट्री। माउंटेन और वाटर, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के इंटरेक्शन से जितने भी आर्ट के ग्रेट क्रिएशंस होते हैं वो इन्हीं के रिजल्ट के रूप में होते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, जो कि रिसेप्टिव है, फेमिनाइन एस्पेक्ट है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism। इन्हीं दोनों एलिमेंट का जो इंटरेक्शन है, yang और yin का इंटरेक्शन ही Taoism का फंडामेंटल नोशन है। yin I mean yang क्या है? यांग को दिखाया गया एक्टिव है, मैस्कुलिन है। वहीं पे यिन क्या है? रिसेप्टिव है, फेमिनाइन एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का। और हां, वन थिंग मोर, व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, जो अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है, वो एसेंशियल थर्ड एलिमेंट है। बीच का वाइट, यांग और यिन, माउंटेन और वाटर के बीच का जो मिडिल वाइट है, बीच का जो खाली स्थान है, जहां पे यांग और यिन दोनों का इंटरेक्शन होता है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। This can be compared with the yogic practice of pranayam। इसको जो योगिक प्रैक्टिस है प्राणायाम की, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो। The author compares this point of ecstasy to the yogic practice of pranayam, which calls for a synchronized rhythm of breathing in, retaining the breath and breathing out। okay? प्राणायाम क्या है? Breathe in, retain, breathe out। The suspension of breath is the void। जब हम breath को का सस्पेंशन होता है, जब breath को हम रोकते हैं, वही void है। वहीं पे where meditation occurs, meditation वहीं पे होता है। The middle void is essential। जो रिटेनिंग वाला पोर्शन है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के बीच का जो रिटेनिंग पोर्शन, जो रिटेनिंग का पोर्शन है, वही मिडिल वाइड है, वहीं पे मेडिटेशन होता है। द मिडिल वाइड इज एसेंशियल। ये जो मिडिल वाइड है वो एसेंशियल है।
The suspension of breath is where one achieves ecstatic bliss. The void where meditation occurs in the true sense. The middle word is an essential and integral feature. जो मिडिल वाइड है वो essential और integral feature है. For no creation is possible without it. क्योंकि कोई भी creation इस मिडिल वाइड के बिना possible ही नहीं है. The void, nothing can happen without it. Hence, the importance of the void, unpainted space in Chinese landscape. ये चीज किसे शो करता है? चाइनीज लैंडस्केप में वो वाइट पोर्शन जहां पे कोई पेंट नहीं किया जाता, वो वाइट अनपेंटेड स्पेस, वही वाइड है, वही मिडिल वाइड है, वही सारी सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है. द वाइड अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप इज सिंबॉलिक ऑफ द हाइट ऑफ द एक्सटैटिक ब्लिस. ये जो वाइट अनपेंटेड स्पेस है चाइनीज लैंडस्केप का, वो सिंबॉलिक होता है एक्सटैटिक ब्लिस की हाइट का. दैट बिकम्स द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल क्रिएटिव वर्क्स, जो कि सभी क्रिएटिव वर्क का फाउंटेन हेड बनता है. दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल. दिस इज द प्लेस, यही वो स्थान है जहां पर कि इंसान को अपना फंडामेंटल रोल मिलता है. इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, वो हेवन और अर्थ के बीच का जो प्लेस है, ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स. ये जो इंसान है उसी हेवन और अर्थ के बीच के जो प्लेस है, उस प्लेस में वो क्या बनता है? ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हेब ऑफ बिटवीन हेवन एंड अर्थ. ये मैन है, वो हेवन और अर्थ, ये जो दोनों पोल्स हैं यूनिवर्स के, उन यूनिवर्स के पोल्स का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बनता है मैन. हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, इसकी उपस्थिति एसेंशियल है. इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, भले ही ये केवल सजेस्टेड है. फॉर फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज इन फ्रैंक्विस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप. यद्यपि he is far from being lost or oppressed by the lofty peaks. Lofty peaks के द्वारा ये से बहुत दूर है, oppressed है, लेकिन उसका प्रेजेंस सजेस्टिव है. और यही कारण है कि फ्रैंक्विस चेंग्स की वंडरफुल एक्सप्रेशन इंसानों के लिए हुआ है कि ही इज द आई ऑफ द लैंडस्केप. इंसान क्या है? एज द एडमायरर, ह्यूमन बीइंग इज द एडमायरर. दैट इज व्हाई ही इज द आई ऑफ द लैंडस्केप. वो लैंडस्केप का आई है. ही गिव्स न्यू डायमेंशंस थ्रू हिज वर्सेटाइल पर्सपेक्टिव. अपने वर्सेटाइल पर्सपेक्टिव के द्वारा वो जो है एक नया डायमेंशन प्रोवाइड करता है उस लैंडस्केप को. So in this way we have tried to understand this landscape of soul. ये जो एक्सेप्ट है ये लिया गया है लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग. इसमें हल्का फुल्का एडिट भी किया गया. जैसा हमने आप लोगों को पहले जो है इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि आउटसाइडर आर्ट या नेक चंद जी ने चंडीगढ़ में एक बहुत ही फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस रॉक गार्डन
का एम्पायर क्रिएट किया। एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर आउटसाइडर आर्ट को यहां चाइनीज और यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटिंग के बीच में लाने का प्रयास क्यों किया गया। मैंने उस समय आपको ये बात बड़े अच्छे से समझाई थी, अभी फिर समझ लीजिए कि देयर इज नो वंडर दैट द राइटर इज कंक्लूडिंग दिस लेसन विद द एग्जांपल ऑफ नेक चंस कंट्रीब्यूशन टू द आउटसाइडर आर्ट। His creation of the rock garden is indeed the landscape of the soul. अगर देखा जाए तो उनका जो क्रिएशन है रॉक गार्डन का, वो भी तो लैंडस्केप ऑफ सोल ही है, क्योंकि ये खुद में इट अपील्स टू द हार्ट एज वेल एज टू द सोल। ये हार्ट और सोल दोनों को अपील करता है। Okay, so let us try to understand this portion that is getting inside outsider art. हम लोग outsider art को समझने का प्रयास करते हैं। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. जब फ्रेंच पेंटर जीन डिबफेट ने आर्ट ब्रट का कॉन्सेप्ट मूट आउट किया था 1940 में, उस समय जो अनट्रेन्ड विजनरीज हैं उनकी विजन को, उनके आर्ट को माइनॉरिटी इंटरेस्ट में रखा जाता था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया बन गया इंटरेस्ट का कंटेम्परेरी आर्ट में, और आज तो इंटरनेशनली ये बहुत ही फेमस हो चुका है। This genre is described as the art of those who have no right to be artist. ये जो जेनर है आर्टिस्ट का, ये एक ऐसा जेनर है जिसको कि कहा जाता है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको कि आर्टिस्ट कहलाने का हक नहीं है, as they have received no formal training, क्योंकि इन्होंने आर्टिस्ट होने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया। फिर भी yet so talent and artistic insight, despite of that, ये अपना टैलेंट और आर्टिस्टिक इंसाइट शो करते हैं। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. उनके जो वर्क्स हैं वो स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट रहे हैं उनके मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स के। Around the time Dubuffet was propounding his concept, लगभग ये वही समय था जबकि फ्रांस में जीन डिबफेट अपने कॉन्सेप्ट को propound कर रहे थे। इंडिया में and in India an untutored genius was creating paradise. उसी दौरान इंडिया में एक untutored genius पैराडाइज क्रिएट कर रहा था। Years ago, सालों पहले की बात है, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden is sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the rock garden at Chandigarh. सालों पहले जंगल के एक छोटे से पैच को साफ करके, जहां पर कि उन्होंने अपना जो है एक गार्डन स्कल्प्ट करने का प्रयास किया था स्टोन और रिसाइकिल्ड मटेरियल्स के द्वारा, उसी को आज ये पूरी दुनिया रॉक गार्डन के नाम से जानती है, जो कि चंडीगढ़ में है। Its 80-year-old creator director Neak Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. इसके
जो क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं, मिस्टर नेकचंद सैनी, जो कि आज 80 से 80 ईयर के हैं, आज उन्हें इंडिया के सबसे बड़े आउटसाइडर आर्ट के फील्ड में इंडिया के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर के रूप में हेल किया जाता है। द 50th issue is Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nekchand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. आपको ये जान के, फिलहाल अब तो काफी समय बात हो गई, हम लोग 2020 में हैं, ये 2005 की बात है जबकि ये बुक जो है, ये चैप्टर जो है लिखा गया था। हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त को 2005 में ये न्यूज आई थी। तो उस समय के लिए बात थी कि ये एक यूके बेस्ड मैगजीन है जो कि आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस को पायोनियर करती है, जिसका नाम है रॉ विजन। उसने अपने 50th इशू जो कि स्प्रिंग 2005 था, उसने नेकचंद और उनके रॉक गार्डन के स्कल्पचर, इसमें जो किसका नाम है वुमेन बाय द वाटरफॉल, उसको अपनी एनिवर्सरी इशू कवर पेज पे पब्लिश किया था। The notion of art bread or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. ये जो आर्ट ब्रेड और रॉ आर्ट का नोशन है, that was of works that were in their raw state, वो अपने रॉ स्टेट में वर्क्स थे। अगर हम कल्चरल या आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो उस फील्ड में एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार वुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजीइंग हाइट्स। जिन चीजों से नेकचंद जी ने अपने आउटसाइडर आर्ट को आज डिजीइंग हाइट तक पहुंचाया है, उसका रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ टिन और अ सिंक और अ ब्रोकन डाउन कार। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream, उनके आर्ट को जो है रिकॉग्नाइज करते हुए स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को उनको ऑनर करेगा और उनको उनके लिए एक स्टेटमेंट दिया जाने वाला है कि एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, एक ऐसा इंसान जो कि एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी क्रिएट करता है जो कि सबसे अलग है, और ये कोई भी आदमी कर सकता है अगर वो अपने ड्रीम को जीना शुरू कर दे तो। The 5-month interactive show Realm of Nekchand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली में अक्टूबर 2005 से 5 महीने का इंटरेक्टिव शो शुरू हो रहा है जिसका नाम रखा गया है रियल्म ऑफ नेकचंद। द बिगेस्ट रिवॉर्ड is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, नेकचंद says। नेकचंद कहते हैं कि ये शायद उनके वर्क का बिगेस्ट रिवॉर्ड है जो कि उन्हें गार्डन से मिलता है, और वो कब मिलता है जब लोग उनके क्रिएशन को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ये जो गेटिंग आउटसाइडर आर्ट है, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट है, ये बृंदा सूरी जी का जो है आर्टिकल था जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को published हुआ था। So students, in today's class up to here only,
In this way, we are finishing this chapter over here. We shall meet again in next with the next chapter. Thank you. Have a nice day.